Okay, so let's start with question 52, and this question appeared in 2019 exam, NEET 2019. So two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda and minus lambda are placed at a distance of 2r in free space. आपके पास दो वायर्स है, इस पे एक पे प्लस लैम्बडा चार्ज डेंसिटी है, एक पे माइनस लैम्बडा चार्ज डेंसिटी है. So you have plus lambda here, you have minus lambda here. Okay, what is the electric field midway between the two line charges? अब दोनों में distance कितना है? 2r. So total distance between these two lines is 2r. From here to here you have distance of 2r. Okay, and आपको midway, आपको center में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूछा है. तो वायर नंबर 1 से और वायर नंबर 2 से सेंटर का डिस्टेंस दोनों केस में r होगा. सो r and r, so this distance is r, and also for the second wire the distance is r. so distance दोनों केस में r and r आएगा. Okay, so you have r distance here, you have r distance here. Okay, now you have to find out what is electric field. तो गॉस लॉ अगर याद होगा आपको, from Gauss law you have seen electric field at a distance r from a line which has a charge density of, मतलब from a straight infinite wire. हमारे पास एक straight infinite wire था, उस पर चार्ज था, उसकी वजह से जो at a distance r electric field होता है वो होता है E is equal to 2, मतलब of course आपको याद होना चाहिए कि this is something like 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda by r. So we know that electric field due to a long straight wire, field due to a long straight wire at a distance r is 1 upon 2 pi 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda by r, ऐसा आता है, right? So this is what it is. Now of course you should know that electric field is a vector quantity. तो जो पहले वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव है तो अवे होगा, मतलब पहली वायर से अवे होगा. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. दूसरा जो वायर है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का एडिशन होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल electric field due to wire 1 is E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda by r away from it, मतलब खुद से ही दूर, वायर 1 से अवे. Similarly, electric field due to wire 2 is E equal to, मैं इसको बेटर E2 बोल देता हूं, इसको बेटर मैं E1 बोल देता हूं, is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 lambda by r 2 lambda by r towards it. अब towards it का मतलब towards wire 2. okay, this is what you need to know. Therefore total electric field
total electric field at midpoint मिडवे बोला है इसलिए मिड पॉइंट बोल रहा हूं इज E equal to E1 plus E2 that is 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda by R plus 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda by R तो यह आ जाएगा 2 times of 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda by R ओके तो यहां से ये 4 और नीचे का 4 कैंसल तो ये आपको मिल जाएगा लैम्बडा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 आर तो लैम्बडा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 आर ऐसा है क्या लैम्बडा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 आर ऑप्शन नंबर डी so you have option number D okay this is how you are supposed to solve it question was easy formula आपको याद होना चाहिए था then next question three charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A okay as shown in following figure the force experienced by a charge placed at vertex A is given is vertex A in a direction normal to BC is अच्छा this is oral question option number C is correct answer कैसे तो बताता हूं how क्वेश्चन पूरा पढ़ना जरूरी है आपको बोला है आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ओके यू हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके ए वर्टेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है बी वर्टेक्स पे नेगेटिव चार्ज है और सी वर्टेक्स पे भी नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है सॉरी सो यू हैव सिचुएशन लाइक दिस यू हैव सिचुएशन लाइक दिस मोर और लेस ओके ऐसा सिचुएशन है तो ये आपके पास आ गया ए बी और सी स्मॉल ए this is plus q this is minus q and this is plus q now they are asking you what is the force experienced by charge at a normal to bc bc इस डायरेक्शन को नॉर्मल अब एक चीज याद रखना चार्जेस सारे के सारे पॉजिटिव या सारे के सारे नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस विल बिकम इंपॉर्टेंट ओवर हियर ओके तो डायरेक्शंस विल बिकम इंपॉर्टेंट नाउ अब ए पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू सी इट इज अवे सो इट इज डायरेक्टेड लाइक दिस इट इज अवे तो ये आपका आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी सो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी ओके ये एंगल 60 डिग्री है बिकॉज आपको बोला है कि ट्राइंगल जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल है नाउ यू कैन ब्रेक दिस इनटू कंपोनेंट्स आप इसके कंपोनेंट्स कर सकते हो एक कंपोनेंट यहां जाएगा और दूसरा कंपोनेंट यहां पे आएगा ओके सो यू कैन जस्ट स्प्लिट इट इनटू कंपोनेंट्स right so you will have two components here तो first of all components करते आपको आने चाहिए you should know how to do components right so this is f a c sin theta sin 60 मतलब so this is sin 60 okay तो वो कैसे आया यू हैव टू अंडरस्टैंड यू नीड टू नो दिस अब ये 60 डिग्री है दिस इज 60 तो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री ओके तो ये 60 डिग्री अगर हो गया तो ये एफ ए सी कॉस 60 होगा तो दूसरा कंपोनेंट एफ ए सी साइन 60 होगा दिस इज व्हाट यू नीड टू नो तो दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड राइट
ये तो हो गया आपका फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, अब ए पे पॉजिटिव चार्ज है और बी पे नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी टुवर्ड्स बी, तो ये डायरेक्शन आएगा उसका। सो यू विल गेट दिस एज दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। इसका एक कंपोनेंट वही कॉस कंपोनेंट यहां जाएगा और उसका जो साइन कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो यू हैव दिस एज एफ ए बी cos 60 and you have this as f a b sin 60, right? अब if you know magnitude wise, okay, I'm talking about magnitude wise, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो डिस्टेंसेस किसी भी दो वर्टेक्स में सेम होंगे। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप बोलोगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी आर इक्वल के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। मुझे पता है कि एक वर्टेक्स पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो हमने डायरेक्शन में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया। हमने डायरेक्शन बता के बोल दिया हाँ, क्योंकि ये नेगेटिव है तो टूवर्ड्स, वो पॉजिटिव है तो अवे। तो डबल डबल यहाँ पे भी बताओगे, फिर फोर्स में भी माइनस लिखोगे। आप बोलोगे नहीं नहीं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज माइनस, क्योंकि एक चार्ज माइनस है, इसके लिए माइनस के क्यू स्क्वायर। अरे पर फिर डायरेक्शन में बता दिया ना, फिर डबल डबल नहीं करना होता है वो, राइट? सो यू डोंट हैव टू डू इट ट्वाइस। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। ओके, तो therefore force, net force perpendicular to BC is 0. Therefore net force perpendicular to side BC is 0, since FAC sin 60 and FAB sin 60 cancel each other, cancel out. So this is how you get 0. ये oral question था. Okay, so this is how you're supposed to solve this particular question. Quite simple and oral question. Okay, so अगला question, 56th question. Equipotential surfaces associated with an electric field which is increasing in magnitude along the x direction are. Okay, तो आज not today but in the session theory sessions of electrostatics मैंने आपको एक डायग्राम बताया था. I showed you one thing, that you have equipotential surfaces, और ये मैंने नोट्स, जो थ्योरी नोट्स है उसमें भी मैंने यही डायग्राम दिया है. तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं, इस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, right? So equipotential surfaces associated with an electric field which is increasing in magnitude along x direction are planes parallel to yz plane, planes parallel to xy plane, planes parallel to xz plane, coaxial cylinders of increasing radii around x-axis. So this is very simple question.
अगर मैं अब आपको डायरेक्शंस बताऊं तो एज आई टोल्ड यू, आई जस्ट टोल्ड यू दैट, मैंने आपको अभी अभी बताया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलोंग एक्स डायरेक्शन है तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो, ये आ गया आपका वाई डायरेक्शन, ये आ गया आपका जेड डायरेक्शन। ओके, सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी इन वाई जेड प्लेन, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी प्लेन्स पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं, व्हाट you have to know is equipotential surfaces are always perpendicular to electric field, या उल्टा बोलो, electric field is always perpendicular to equipotential surfaces। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस yz प्लेन में होंगे। आप ऐसा भी बोल सकते थे, अगर ये y एक्सिस है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स जेड प्लेन में होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक्स वाई प्लेन में होंगे। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज इजी। अगला क्वेश्चन 57th, in the figure a proton moves a distance d in a uniform electric field E bar as shown in figure. Does the electric field do a positive or negative work on proton? Does the electric potential energy of the proton increases or decreases? In the figure, a proton moves a distance d in a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार। अब ऐसा है, सबसे पहले व्हाट यू नीड टू नो इज कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारे पास एक प्रोटॉन है जो मूव हो रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ओके, so this is how you are supposed to show. Now this proton moves a distance d। अब आपको पता है ये भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव, तो रिपेल होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो मतलब हमको जबरदस्ती उसको लेके जाना पड़ेगा। जबरदस्ती लेके जाना मतलब वर्क इज डन, और वर्क डन कहाँ जाता है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज एंड नॉट डिक्रीज, मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी तो हो नहीं सकते। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। ओके, अब वर्क पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? सो फॉर दिस यू नीड टू नो एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। ओके, तो दिस इज अ नेगेटिव वर्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। Why? So you have to go into basics and read definition of work now. तो why negative work is done, थोड़ा सा आप theory पढ़ो तो you will understand why potential energy तो increase होगा, there is no doubt about it. Why negative work? Okay, so look at it, positive work या negative work। तो मैं ये आपको as a assignment दे रहा हूँ because there is some theoretical background behind this। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, देयर इज नो डाउट। पॉजिटिव वर्क या नेगेटिव वर्क, तो आपको ये आपको चेक करना है, क्योंकि देन यू हैव टू रीड व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव एंड व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, तो ये चेक करो। अगला क्वेश्चन, a proton is about 1840 times 1840 times heavier than an electron
when it is accelerated through a potential difference of 1 kilovolt, its kinetic energy will be. Easy क्वेश्चन है. आपको मैंने बताया था कि आपके पास अगर एक प्रोटॉन है, आपने अगर इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो दिस प्रोटॉन स्टार्ट्स मूविंग ऑफ कोर्स टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट. तो यू हैव दिस एज पॉजिटिव प्लेट, योर नेगेटिव प्लेट. मतलब आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, उस पोटेंशियल डिफरेंस में आपने प्रोटॉन को रखा है, पॉजिटिव चार्ज को रखा है, तो इट स्टार्ट्स मूविंग. ओके, तो व्हेन इट स्टार्ट मूविंग इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी. एंड आपको पता है बाय डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. ये हमने पहले भी बहुत बार देखा है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, kinetic energy gained by a charge when it moves through a potential difference is Q into V. ये by definition है. So Q charge on proton is E. Okay. यहाँ पे प्रोटॉन is about 1840 times heavier. उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास here it depends on charge into potential difference. potential difference कितना था? 10⁻3, क्योंकि बोला 1 किलोवोल्ट. ओके, आपको 1 किलोवोल्ट मतलब 10 पावर 3 दिया हुआ है, तो ये आ गया 10 पावर 3 EV. ओके, 10 पावर 3 EV मतलब 1 किलो EV है ना. तो आंसर विल बी C. 10 पावर 3 इज 1 किलो EV. ऑप्शन नंबर C. मैं वापस बता रहा हूँ क्वेश्चन. हमारे पास एक प्रोटॉन है, वो जो प्रोटॉन है वो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल डिफरेंस में रख दिया. सो वी हैव केप्ट इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 पावर 3 वोल्ट. 1 किलो वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में हमने रखा है इसको. It will start moving, it will start gaining kinetic energy, and that kinetic energy is Q into V. Q मतलब E, क्योंकि चार्ज एंड प्रोटॉन इज E, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 10 पावर 3. so 10 पावर 3 EV is the kinetic energy. ओके, जूल में नहीं कर रहे हो आप, EV में कर रहे हो, राइट. सो दिस इज 1 किलो EV. हो गया आपका आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व. अगला क्वेश्चन नंबर 60th. shown below is a distribution of charges. The flux of electric field due to these charges through surface S. It is a joke. आपको बोला है shown below is a distribution of charges. So you have some charge distribution here plus Q. You have another charge distribution here plus Q. You have another charge distribution over here. तो आपके पास 3 charge distribution है, ऐसा है, और एक सरफेस है, एंड यू हैव वन सरफेस लाइक दिस. आपको बोला है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू एस. जोक. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0. अब ये जो सरफेस एस है इसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? Q प्लस Q, और एक जो तीसरा Q है वो बाहर है, वो नहीं काउंट करना. तो 2Q बाई एप्सिलॉन 0 सिंस चार्ज एनक्लोज्ड इज 2Q. ऑप्शन नंबर बी. खत्म क्वेश्चन. तो दे वर चेकिंग कि आप 3Q बाई एप्सिलॉन 0 लिखते हो क्या. तो डू यू हैव यू अंडरस्टूड गॉस लॉ वेरी वेल? दिस इज व्हाट दे वर चेकिंग. गॉस लॉ क्या है? टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस. यहाँ पे सरफेस कौन सा है? ये इलिप्टिकल सरफेस जो है, ये सरफेस है S. इसमें से कितना फ्लक्स? तो फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0. हाउ मच इज चार्ज एनक्लोज्ड? इट इज 2Q, क्योंकि एक Q बाहर है, वो अंदर नहीं है. अगला क्वेश्चन. A 40 microfarad capacitor in a defibrillator. I don't know what it is and I don't care what it is. Okay, तो छोड़ दो, जो भी होगा देखेंगे. is charged to 3000 volt. You have a 40 microfarad capacitor which is charged to 3000 volt. तो आपको कैपेसिटी दिया हुआ है
40 माइक्रोफैराड का, और आपको बताया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज 3000 वोल्ट. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज सेंट through the patient during a pulse of duration 2 millisecond. Time दिया हुआ है 2 millisecond. The power delivered to the patient is okay. तो ये जो डिवाइस का नाम बोला है defibrillator, it is some medical instrument. Okay, तो if I am not wrong, वो जब पेशेंट को इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक तो उसको वो पल्स जनरेट करने के लिए दे गिव शॉक. आई थिंक दैट इज द मशीन, बट यू कैन जस्ट गूगल इट आउट. ओके, सो as far as I understand, but you can just see what is this. Anyways, तो उन्होंने क्या बोला है कि 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर था जिसको 3000 वोल्ट पे चार्ज किया. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो हमने सेंड किया through the patient during a pulse of duration 2 millisecond. 2 millisecond duration में हमने वो energy stored dissipate किया. मतलब what is the power delivered to the patient, how much power we have delivered to the patient. Very good question and simple question. क्यों simple? Because energy stored तो आपको पता ही है half CV square. तो half CV square, you know what is C? You know C is 40 microfarad. You know what is V? It is 3000. So this is in total 1 za 20 za 2 into 3 6. ये 3 0 ये 1 0 मतलब टोटल 4 10 power 4. Okay, तो 6 into 10 power minus 6 into 10 power plus 4, that is 6 into 10 power minus 2 joule. This is the energy stored. कम से कम एनर्जी स्टोर्ड मिल गया. पावर delivered. Okay, if I am not wrong, let me once again cross verify numbers. Okay, 40 microfarad and 3000 volt उसका square है. Okay, so that is where I went wrong. Okay, so you have to be little careful. So this is 3000 का square, तो ये आ जाएगा 20 into 10 power minus 6 into 3 का square is 9 into 10 power 3 का square is 6. ये और ये कैंसिल हो गया तो 180 जूल एनर्जी. ओके गुड. तो यू नो व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. आपको एनर्जी स्टोर्ड पता है. व्हाट इज पावर? बाय डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी स्टोर्ड अपॉन टाइम. बाय डेफिनेशन पावर इज वर्क अपॉन टाइम. वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम. 120 upon 2 millisecond, 2 into 10 power minus 3 second. So 2 into 10 power minus 3. तो 1 जा and this is 90 जा. ये 10 power minus 3 ऊपर आके 10 power plus 3 हो जाएगा. तो 90 into 10 power 3 plus 3 मतलब 9 into 10 power 4 मतलब 90 kilowatt basically. This is 90 into 10 power 3 watt मतलब 90 kilowatt. Option number B. So it's a good question. Obviously it is a good question. So you need to learn how to solve this question. Okay, definitely you will come across some questions in which they are talking about some instrument which you are not aware of. आपको नहीं पता वो इंस्ट्रूमेंट क्या है. हमको जरूरी नहीं पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए फिजिक्स. कैपेसिटर 40 माइक्रोफैराड. ओके, वोल्टेज 3000 वोल्ट. ओके, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर. राइट. फिर हमने 2 मिलीसेकंड के लिए इस एनर्जी को डिसिपेट होने दिया. पावर इज वर्क अपॉन टाइम. वर्क इज एनर्जी, एनर्जी आपने फाइंड करके रखा है अपॉन टाइम. डन. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. द वोल्टेज ऑफ क्लाउड्स इज 4 into 10 power 6 volts with respect to ground. Good question, because this is something you need to know. You have ground, this is ground. You have clouds. You have clouds. Okay, so the voltage of clouds is 4 into 10 power 6 volt with respect to ground. Now the potential difference between clouds and the ground is 4 into 10 power 6.
So potential difference V is 4 into 10 power 6 volt. Okay, right? In a lightning strike lasting for 100 millisecond, तो टाइम आपको दिया है 100 मिलीसेकेंड, a charge of 4 coulomb is delivered to the ground. आपको पता है लाइटनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज लाइटनिंग, हम बोलते हैं बिजली गिरना, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम क्लाउड टू ग्राउंड। तो जब लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ तो टोटल चार्ज ऑफ 4 कूलम इज डिलीवर्ड टू द ग्राउंड। तो यहां से ये 4 कूलम का चार्ज इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग इज डिलीवर्ड टू द ग्राउंड। ओके, so 4 coulomb charge from cloud to ground. The power of lightning strike is exactly the same question. देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूलाज भी सेम है, तो only thing is the way of solving is different. Energy stored in a capacitor you have learned is half CV square, but you have also learned two alternative formulas. अब यहाँ पे C तो नहीं पता, V पता है, Q पता है, but you know Q is C by V. ऐसा था ना, ऐसा था, ऐसा नहीं था, तो याद रखना ये C is Q by V होता है, C is Q by V ऐसा होता है. Okay, so this is what you need to know. Therefore, energy stored is half Q by V into V square, that is half QV. So therefore, U is equal to half QV. Okay, so Q is 4 and V is 4 into 10 power 6. So this is 1 za, 2 za, 8 za, 8 into 10 power 6 joule of energy is stored. Right, this is what you have. Now, आपको एनर्जी स्टोर मिल गया. व्हाट इज पावर? पावर इज अगेन एनर्जी पर यूनिट टाइम. 8 into 10 power 6 और टाइम कितना दिया है 100 मिली सेकेंड. 100 into 10 power minus 3 मिली, मतलब तो 10 power minus 1 बचेगा, ये ऊपर जाके 10 power plus 1 होगा. 8 into 10 power 7, 8 into 10 power 7 मतलब 80 into 10 power 6. So this is nothing but 80 into 10 power 6 watt. 10 power 6 मतलब मेगावाट, तो 80 मेगावाट. 80 मेगावाट ओनली विथ अ चार्ज ऑफ 4 कूलम. 80 मेगावाट का पावर डिलीवर हुआ. एक्सेलेंट. ओके, सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 64th. A parallel plate condenser is filled with two dielectrics as shown. Area of each plate is a meter square. Separation is t. मतलब you have something like this, and area of each plate is a, separation between them is t. इसमें भी आपने दो डायलेक्ट्रिक फिल करके रखे हैं. So you have filled two dielectrics. Something like this. Okay, so you have K1 over here, dielectric constant, and K2 over here, dielectric constant. So these are the two plates with area A each. The distance between the plates is T. The dielectric constant K1 and K2, they are respectively given. Capacitance पूछा है आपको. You are asked what is capacitance. तो of course as I told you कि यहाँ पे हाफ एरिया में एक डायलेक्ट्रिक, हाफ एरिया में दूसरा डायलेक्ट्रिक, मतलब फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस. ओके, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई एट द फर्स्ट प्लेस कि विच कॉम्बिनेशन इज दिस. इज दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, इज दिस सीरीज कॉम्बिनेशन? तो ये आपको पता होना चाहिए.
So first is to identify which kind of combination is this, then find out equivalent, क्योंकि ये दो कैपेसिटर बन जाएंगे, there will be two capacitors. Okay, good. So what I will do is I will want you to solve this question, क्योंकि हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं, तो few questions I would like you to work out. Easy है, सिर्फ आइडेंटिफाई करो कॉम्बिनेशन कौन सा है, क्योंकि एक कैपेसिटर बनेगा C1, ये बनेगा C2, तो यू हैव टू जस्ट चेक एंड वेदर इधर इन सीरीज और इन पैरेलल आपको पता है, फॉर्मूला सबको पता है, मैं फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ आपको. यू नो व्हाट इज फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर कैपेसिटेंस इज K A एप्सिलॉन 0 by D. तो आपको सिर्फ चेक करना है कौन सा कॉम्बिनेशन है and then find out what is equivalent capacitance, whether it is series, whether it is parallel, so on and so forth. So this is how you're supposed to solve this question. Agla question, this I will do it for you. 5 capacitors, each of value C, are connected as shown in figure. The ratio of capacitance between P and R and the capacitance between P and Q is. Okay, तो ऐसा है, आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया है समथिंग लाइक दिस. ओके, यहाँ पे आपके पास यू हैव कैपेसिटर ओवर हियर, ओवर हियर, ओवर हियर, ओवर हियर एंड ओवर हियर. ओके, something like this. Okay, so you have P, Q, R, S, T. ये सारे कैपेसिटर C, 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 C और C वैल्यूज के हैं. आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड R. तो P में और R में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है और P और Q में कितना है, इन दोनों का रेशियो लेना है. तो देखो क्या है, जब मैं P और R के बीच में निकालूंगा तो ये दोनों आपके पास आ जाएंगे सीरीज में और ये तीनों आ जाएंगे सीरीज में, राइट? तो इन दिस केस व्हाट यू विल हैव इज, सो ये जो दो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आएगा C/2. मैं शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूं बिकॉज दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू. ओके, सो व्हाट आई जस्ट सेड इज, ये जो दो आपके पास कैपेसिटर है, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन आई विल राइट एज CS1, that is C/2, क्योंकि दो कैपेसिटर इन सीरीज इज इक्विवेलेंट इज C/2. This is, let us say, CS2. So you have the other three in series CS2 as C/3. अब आप बोल सकते हो कि ये CS1 और CS2 पैरेलल में है. Now CS1 and CS2 are in parallel. तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में. 2 C जो थे वो सीरीज में थे, 3 C जो थे वो सीरीज में थे, ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको डायरेक्टली मिलेगा एडिशन. तो CS1 plus CS2, that is C/2 plus C/3, that is 5/6, 5C/6. So this is equal to 5C/6, and this is nothing but
capacitance between points P and R. P और R में ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे P और Q के बीच में जब देखोगे तो ये इजी केस है। ये इजी इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो चार है, ये सीरीज में है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन P और Q के बीच में जो एक C है इसके साथ पैरेलल में है। So you can say this is CS, you can say this is series combination which is C by 4. Okay, right. So now you can say C by 4 मतलब CS and C are in parallel. So therefore you will say capacitance between PQ is equal to CP, which is C plus C by 4, that is 5C by 4. So this is equal to 5C by 4. Okay, आपको रेशियो पूछा है, therefore capacitance between PR to that of PQ is, वो था 5C by 6, ये है 5C by 4, तो ये है 4 by 6 मतलब 2 by 3. तो 2/3 रेशियो आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 2:3. क्वेश्चन अच्छा था, सिंपल था, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स दैट यू कैन हैव, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे.